चलो गुड मॉर्निंग। एंट्रांस हम स्टडी कर रहे हैं। इवनिंग के लेक्चर में मैंने कुछ सम आपको सॉल्व करने के लिए कहा था कि आप कुछ ट्राई करो। उसमें से एक फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू रूट x cos ऑफ e रेज़ टू रूट x अपॉन रूट x dx। ऑप्शंस अवेलेबल है 2 sin ऑफ e रेज़ टू रूट x, 3 sin ऑफ e रेज़ टू रूट x, 4 sin ऑफ e रेज़ टू रूट x, -5 sin ऑफ e रेज़ टू रूट x। डिसाइड व्हिच इज द करेक्ट। उस वक्त मैंने क्यों कहा था here the angle is not standard, that's why I put this angle equal to t, and we know that in integral solution every time differentiate हर क्यू हमें समझ में आना चाहिए। कोसाइन एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब इसे पुट करना है, एंगल को पुट करना है t and differentiate the solution. After that the function completely convert in t variable and find out the integral of the function. This is the process. But if here your confusion, then use the another method, means shortcut, differentiate the option one by one option and decide which is the correct. If you guess this properly, then directly without solving here possible to find out the answer. हमारा लॉजिक क्लियर रहा तो हमें समझ में आएगा रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। सपोज यू डिफरेंशिएट दिस, ये डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट टू एज इट इज है, दिस इज अज्यूमिंग x sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, but this bracket, this term is not x, that's why into derivative of this assuming this is compared to e raised to x, derivative of e raised to x is what, e raised to x, but again this is not x, that's why into derivative of root x and derivative of root x 1/2 root x, and after that this 2 is a cancel, remaining is the original function, means answer A is the correct. ये मल्टीपल 2 है, अपॉन 2 आया तो कैंसिल होगा, अपॉन 2 कब पॉसिबल होगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x है, इसका मतलब आंसर ऑप्शन ए ही है। ये विदाउट सॉल्विंग भी पॉसिबल है, अदर कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? If here confusion to find the integral, that can differentiate one by one option. I can differentiate this constant as it is, derivative of sin x is the cos x, but this is not x into derivative of this assuming, but this assuming is a compared to e raised to x, and derivative of e raised to x is e raised to x as it is, but this is not x. Again into derivative of this assuming मतलब derivative of root x, and derivative of root x is 1/2 root x. This 2 is a cancel to form the original by using the option A. That's why option A is correct. इसलिए आंसर A करेक्ट आया हमें। सेम टाइप लुक रहा है नेक्स्ट 149 नंबर का क्वेश्चन है 1 dx divided by 3 e raised to x plus 27 e raised to minus x, and look one by one option A है 1/6 tan inverse of e raised to x by 2, ऑप्शन बी है 1/7 tan inverse of e raised to x by 3, ऑप्शन सी है 1/8 tan inverse of e raised to x by 2, एंड ऑप्शन डी है 1/9 tan inverse of e raised to x by 3। ऐसे 1 by 1 ऑप्शंस हमें गिवन है, ऑप्शन डी तक है। 4 ऑप्शन से हमें चेक करना है कौन सा करेक्ट है। फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ इंटी i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx डिवाइडेड बाय 3 e raised to x plus 27 here e raised to minus x. This is written as 1/e raised to x, ऐसे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट वन here cross multiplication means the denominator 3 e raised to x into this e raised to x, ये होगा e raised to x का स्क्वायर प्लस 27 अपॉन ये टाइप में आएगा आफ्टर सिंपलीफिकेशन, एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x, ये स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक आएगा, बट यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन कन्वर्टिंग द अलजेब्रिक, here this exponential equal to put t e raised to x equal to t, differentiate this means e raised to x
equal to dt by dx, dx transfer here, e raised to x dx equal to dt. To form a value of this numerator is the dt means right in t variable. In t variable, the given function is written as r equal to integral of e raised to x dx का value है dt divided by denominator 3t square plus 27 ये टाइप में होगा. ये we want, this is the 1 upon quadratic, we want the coefficient of square is 1, that's why take the common available coefficient मतलब 3 common upon here t square plus 27 by 3 मतलब 9, 9 is written as a 3 square, ऐसे होगा. Next one, integral of 1 upon x square plus a square. What is the integral? 1 upon a tan inverse of x upon a, ये टाइप में आएगा. ये 3 3 जार हो जाएगा 9 tan inverse of 3 sub to the value of t, t मतलब what? e raised to x upon 3 plus c, उसका इंटीग्रल है. चेक करो कौन सा ऑप्शन है, which is the correct here? ऑप्शन आएगा D, 1 by 9 tan inverse e raised to x upon 3 plus c. ऑप्शन आ गया D. 49 का आंसर है ऑप्शन D. 50 नंबर. अभी आप लोगों को 1 by 1 सॉल्व करना आना चाहिए. सब नंबर 50, sin x plus cos x divided by under root of 1 plus sin 2x dx. ऑप्शन है फर्स्ट x square plus c. ऑप्शन सेकंड है sin x plus c. ऑप्शन थर्ड है x plus c. ऑप्शन लास्ट है cos x plus c. ऑप्शन बहुत सिंपल में है. अभी x स्क्वायर कब आएगा? इंटीग्रल ऑफ x आएगा. x स्क्वायर बाय 2, वहां पर भी 1 by 2 उसको होना चाहिए. sin कब आएगा? मतलब ये कंप्लीट इसकी जगह पे cos x आया तो उसका इंटीग्रल sin x है. What time this possible? All are the cancel, remaining is the 1. 1 का इंटीग्रल आता है x और ये माइनस साइन रहा तो उसका इंटीग्रल आएगा प्लस cos x. ये टाइप में आएगा. तो हमें इसका मतलब ये है ये सब फंक्शन मोस्टली रिमूव होना चाहिए. कोई तो सिंगल बचेगा तो वो ऑप्शन में होगा, अदरवाइज नहीं है. Means what is the first operation? Logically first one to remove this root. मुझे ये root remove करना है. What is the process to remove the root? What time possible this? If inside the root this is a square, that time square and square root they cancel. And we know here available function here multiple angle. It's a formula available. Means put the value of 1 related to the formula of sin 2x. And we know that formula of sin 2x is what? हमें 1 by 1 क्यों ओपन होना जरूरी है, हमें वो समझ में आना चाहिए. What is the formula of sin 2x? 2 sin x cos x. What is the value of 1 related to sin and cos? Sin square x plus cos square x. ये 1 का वैल्यू पुट किया. This is the formula of sin 2x. Numerator as it is as sin x plus cos x dx. Look this a square plus b square plus 2ab. A square plus b square plus 2ab. This is the expansion of, अरे किसका expansion? a plus b whole square sin x plus cos x whole square dx. ये square and square root cancel. What is remaining? Sin x plus cos x upon what? Sin x plus cos x dx. ऐसे आएगा. And check here, this term both are cancel. What is remaining? 1 dx. Integral of 1 dx. And 1 का इंटीग्रल है x plus c. 1 का इंटीग्रल आता है x. ये सब कैंसिल हुआ. ऑप्शन कौन सा गया? C. ऑप्शन C करेक्ट हियर. इतना इजी था, बट हमें लॉजिक क्लियर होना चाहिए. कोई भी सम में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ गिवन क्लू होता है. First one, you understand what is the given clue. वो एक बार समझ में आया तो हमें सॉल्व करना बहुत इजी है. हमें क्लू समझ में आना चाहिए कहाँ पे क्या गिवन है. चलो नेक्स्ट वन. ये सम हो गया 50 नंबर. अभी 51 नंबर.
इंटीग्रल ऑफ tan x dx divided by sec x minus tan x. ऑप्शन गिवन है फर्स्ट 1 upon sec x minus tan x. ऑप्शन बी sec x plus tan x minus x. ऑप्शन सी sec square x plus c. ऑप्शन डी sec x minus tan x plus c. ये ऑप्शन हमें गिवन है tan x upon sec x minus tan x. थोड़ा प्रॉपरली देखो, ऑप्शन सेकेंडरी में है और गिवन फंक्शन भी सेकेंडरी है, मतलब जो फंक्शन यहाँ पर है वही ऑप्शन में है, मतलब हम ये प्राइमरी में नहीं करना है, कोई मैटर नहीं है प्राइमरी में कन्वर्ट करना। तो हम क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना है। इंटीग्रल ऑफ tan x dx डिवाइडेड बाय sec x minus tan x ये फंक्शन है। क्या करोगे आपको सोचना है। ये sec x सपोज हमने न्यूमरेटर का देखा, यहाँ पे सिर्फ साइन अलग है और ये x है। sec x किसका इंटीग्रल आता है? sec x ये किसका इंटीग्रल है? 1 upon x का इंटीग्रल है log x, है कि नहीं? तो ये sec x किसका इंटीग्रल है कुछ पता? sec x is the integral of sec x tan x. अरे sec x tan x का इंटीग्रल sec x है। tan x किसका इंटीग्रल है का? tan x किसका इंटीग्रल है? tan x। अरे बोलो यार, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x। मतलब मुझे वैल्यू ये टाइप में फॉर्म हुआ तो उसका इंटीग्रल ये आएगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। sec स्क्वायर तो किसी का इंटीग्रल नहीं है, 1 अपॉन में किसी का आएगा नहीं, मतलब ऑप्शन ए एंड सी नहीं आएगा। पहले ये क्लियर होना चाहिए। sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x है, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रल sec स्क्वायर नहीं है, मतलब बी एंड डी में ऑप्शन है, बट अभी मुझे sec स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए, sec x tan x फॉर्म होना चाहिए। क्या करना होगा? ये आपका लॉजिक है, ये आपकी सोच है, वही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को आना चाहिए। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑन द फंक्शन? sec x tan x sec स्क्वायर आना चाहिए, मींस टू रिमूव द डिनोमिनेटर। ये रिमूव करना है। ये रिमूव कब होगा? व्हाट टाइम? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द sec एंड tan? आपको सोचना होगा। ये आपका इन्वेस्टिगेशन का क्लू है कि मुझे डिनोमिनेटर रिमूव करना है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? वी नो द रिलेशन 1 plus tan square equal to sec square, मतलब sec square minus tan square is the one. Sec square minus tan square, what time the possible? If we are multiply by sec x plus tan x, that time possible, but the balance the original, that's why numerator and denominator multiply by sec x plus tan x, and this is called as the rationalization of a denominator. Why rationalize? To remove this. To remove this means change the middle sign, multiply whole term, numerator and denominator, and we know the relation between the sec and tan. Numerator tan multiply inside sec x into tan x plus tan square x dx. Check करो राइट का tan into tan square. A minus b, a plus b are the factors of a square minus b square. Sec square x minus tan square x. But by using the identity, value of this is the one. Next one, separate integral. Integration of sec x tan x. Integral of sec x into tan x dx. Plus integral of tan square x dx. इसका value 1 आया ना? Means the remaining only numerator, write the separate integral. Integration of sec x tan x is the sec x. ये sec x तो आ गया। अगला स्टेप देखो, tan स्क्वायर का इंटीग्रल फाइंड करना है। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर? अरे जल्दी बोलो मेरे भाई, tan स्क्वायर का इंटीग्रल है क्या? नहीं है, तो क्या करोगे? tan स्क्वायर का वैल्यू पुट करना होगा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर इज व्हाट?
sec square x minus 1 dx equal to sec x plus what is the integral of sec square tan x 1 का इंटीग्रल x plus c कहीं कोई ऑप्शन में बी ऑप्शन है बी ऑप्शन बी करेक्ट आएगा इसे हमें सॉल्व करना होगा इन्वेस्टिगेशन इज इम्पोर्टेंट वो क्लू हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या है और वो क्लू यूज करके हमें इन्वेस्टिगेशन करना है एंड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन मींस टू अचीव द टारगेट कुछ भी क्वेश्चन हम जो अभी धीरे-धीरे सॉल्व कर रहे हैं मतलब हमारा थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस फील्ड में आप हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट नंबर नेक्स्ट 152 इंटीग्रल ऑफ sin raised to 8x minus cos raised to 8x dx divide by 1 minus 2 sin square x cos square x ऑप्शन अवेलेबल है cos 2x plus c ऑप्शन बी है sin 2x plus c ऑप्शन सी है -1/2 sin of 2x plus c एंड ऑप्शन डी है 1/2 cos of 2x plus c ये ऑप्शंस अवेलेबल है ऑप्शन दे के डिसाइड हो रहा है कि हमारा इंटीग्रल फंक्शन sin 2x या cos 2x होगा तो इसका इंटीग्रल है -cos 2x अपॉन 2 इसका इंटीग्रल है sin 2x अपॉन 2 है कुछ जगह पे नहीं है बट लुक एवरीवेयर अवेलेबल एंगल इज द मल्टीपल मतलब फंक्शन यही फॉर्म में आना चाहिए sin 2x मतलब 2 sin x cos x cos 2x मतलब cos square minus sin square 1 minus 2 sin square या 2 cos square minus 1 ये फॉर्म में पहला फंक्शन आना चाहिए मतलब टू रिमूव दिस पावर ये पावर हमें रिमूव करना है या रिड्यूस करना है कुछ तो कुछ होना चाहिए तो ये हम ये यहां तक पहुंच जाओगे अदरवाइज नहीं उसके लिए हमें सोचना होगा व्हाट इज द ऑपरेशन ये पावर से तो डायरेक्टली sin 2x cos 2x नहीं आएगा पावर इवन है sin रेज़ टू 8x को हम लिख सकते हैं sin रेज़ टू 4x का स्क्वायर माइनस cos रेज़ टू 4x का स्क्वायर divided by 1 minus 2 sin square into cos square x dx. This is the a square minus b square. What is the factor of a square minus b square? A minus b. Second bracket a plus b divided by 1 minus 2 sin square x into cos square x dx. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इससे कंपेयर हो रहा है इसके फैक्टर होते हैं a माइनस b a प्लस b ऐसे होता है फिर से ये रिड्यूस करो मतलब हमें कहां ना कहां मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है मतलब सिंपलीफिकेशन मस्ट है sin रेज़ टू 4x को फिर से हम लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर ये ब्रैकेट सेम टाइप दिस रिटर्न as sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर टाइप में आएगा डिवाइडेड बाय 1 minus 2 sin square x into cos square x ऐसे होगा करेक्ट है फिर से नेक्स्ट वन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फिर से फैक्टर a माइनस b a प्लस b a माइनस b मतलब ये आएगा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a प्लस b मतलब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कैसे आएगा डिनोमिनेटर 1 minus 2 sin square x into cos square x इसमें कोई चेंज नहीं है I can write the factor of this is a square minus b square a minus b second bracket a plus b this is the a square plus b square we know that a square plus b square is written as a plus b whole square minus 2ab इसे हम लिख सकते हैं ये बैलेंस है why right to remove the power
That's why adjustment of a square plus b square is a plus b whole square. a plus b whole square मतलब sin square x plus cos square x whole bracket का square. a plus b, a मतलब sin square, b मतलब cos square. a plus b square minus 2ab. a मतलब sin square, b मतलब cos square. इसे है I can write the simplification of the function by using the one by one step. But after that, we know the value of this. 1. Its value is what? 1. Sin square plus cos square is a 1. What is the remaining here? Sin square minus cos square. If you take the minus common, then in bracket cos square minus sin square. Into 1 मतलब इतना बचेगा. Here 1 का square क्या बचेगा? 1 minus 2 sin square x into cos square x divided by here also 1 minus 2 sin square x into cos square x. Correct है? And check here, this term and this term is the same, both are the cancel. ये cancel हुआ. अभी एक मैंने माइनस क्यों कॉमन निकाला? sin square minus cos square here not available multiple angle formula, but cos square minus sin square it's available multiple angle formula. That is what? Cos 2x minus common, and this is the formula of cos 2x, and we know that integral of cos 2x is what? Sin 2x upon 2. उसका इंटीग्रल होगा प्लस c. देखो कौन सा ऑप्शन है? माइनस sin 2x upon 2 plus c. ये ऑप्शन है c. ऐसे हमें सॉल्व करना था, बहुत इंटरेस्टिंग था. रेज़ टू 8 को मैंने पहले 4 में किया, फिर से पावर 2 में किया, स्टेप बाय स्टेप ये पावर रिड्यूस किया. After that write the simplification, same numerator denominator cancel, remaining term minus common to form the formula of cos 2x, and integral of cos 2x is the sin 2x upon 2. होगा उसका आंसर. ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं. अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए. 52 नंबर का आंसर था ऑप्शन सी. चलो ट्राई द नेक्स्ट वन, सम नंबर 53. 53 नंबर है sec raised to 4x into tan cube x dx. ये सब नंबर है 53. ऑप्शन है फर्स्ट tan cube x upon 3. ऑप्शन है सेकंड tan raised to 4x upon 4 plus tan raised to 6x upon 6. ऑप्शन सी है sec raised to 4x upon 4. ऑप्शन डी है sec raised to 5x upon 5 प्लस c. ये ऑप्शंस अवेलेबल है, हमें डिसाइड करना है विच इज द करेक्ट. चलो क्या पॉसिबल है? एक फंक्शन का पावर ऑड है, एक का इवन है. वी नो द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज द sec square x, but derivative of sec x is the sec x tan x. कुछ ना कुछ फंक्शन का पावर हमें रिड्यूस करना है. डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec square x. हम tan को एज इट इज रख के sec स्क्वायर फॉर्म करें तो बेटर होगा. मतलब दिस इज रिटन एज tan cube x into sec raised to 4 मतलब sec स्क्वायर into sec स्क्वायर. If we are put tan x equal to t, then this sec square x dx equal to dt आएगा. बट ये हमें t में कन्वर्ट करना है, मतलब tan में चाहिए तो ये होगा, मतलब ये इसकी वैल्यू पुट करना है tan में. tan cube x as it is है, sec स्क्वायर का वैल्यू है 1 plus tan square x. अभी हमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है into sec square x dx. पुट करो tan x इक्वल टू t. डिफरेंस है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू आएगा d.
If here put tan x equal to t, then value of sec square x dx is the dt. Means tan x की जगह पे t पुट किया तो ये इंटीग्रल ऑफ t क्यूब मल्टीप्लाई 1 plus t square and remaining is dt. Integral of t cube plus t raised to 5 dt. t क्यूब का इंटीग्रल है t raised to 4 by 4 plus t raised to 6 by 6 plus c. t raised to 4 t मतलब what? tan x मतलब tan x raised to 4x divided by 4 plus tan raised to 6x by 6 plus c. इसका आंसर चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बी। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लॉजिक से सॉल्व करोगे तो 100% आंसर आता है, कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं होगा। 54 नंबर, इंटीग्रल ऑफ 4 raised to x into e raised to x dx। ऑप्शन में गिवन है x into 4 raised to x e raised to x plus c। ऑप्शन ए ऑप्शन है। ऑप्शन बी है 4 raised to x into e raised to x divided by log 4 plus c। ऑप्शन सी है e raised to x into 4 raised to x minus 1 divided by log 4 plus c। ऑप्शन डी है 4 raised to x into e raised to x divided by 1 plus log 4 plus c। ये ऑप्शंस अवेलेबल है, हमें डिसाइड करना है इंटीग्रल क्या आएगा, वैल्यू क्या मिलेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो आप ट्राई करो। 4 raised to x into e raised to x both are the exponential function। r इक्वल टू पावर दोनों का सेम है, हम ऐसे लिख सकते हैं 4 into e raised to x dx। you know that a into b ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर होता है। a into b raised to x is written as a raised to x into b raised to x। अवेलेबल ये फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने वही किया। दिस इज कंप्लीटली कांस्टेंट, मतलब कंपेयर टू a raised to x। we know that integral of a raised to x is what? a raised to x upon log a। क्या मिलेगा? 4 into e raised to x upon log a, मतलब 4 into, assuming this is a constant है दोनों ही, मतलब a raised to x का इंटीग्रल a raised to x upon log a, मतलब log of the bracket 4 raised to x into e raised to x separate power divided by log 4 plus log e। एंड log e का वैल्यू क्या होता है? 1। 4 raised to x into e raised to x divided by 1 plus log 4। कैसे आएगा? ये उसका आंसर है 4 raised to x into e raised to x upon 1 plus log 4। चेक करो कोई ऑप्शन में आएगा? बी। कौन सा ऑप्शन है? डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। You got 54 नंबर। नेक्स्ट वन 55। अभी आप लोगों का स्पीड बढ़ना चाहिए। 55 नंबर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4 minus 3x प्लस sec स्क्वायर 2 minus x dx। सेपरेट। चलो पहले ऑप्शन लिखता हूं मैं। ऑप्शन ए है tan 2 minus x। ऑप्शन बी -3 multiply 4 minus 3x raised to 3 by 2 plus c। ऑप्शन सी -2 by 3 root of 4 minus 3x plus c। ऑप्शन डी -2 by 3 root of 4 minus 3x।
माइनस tan ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये ऑप्शंस है। हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या पॉसिबल है दोनों का इंटीग्रल सेपरेट 1 अपॉन 4 माइनस 3x रूट के अंदर है रेज़ टू 1/2 dx लिख सकते हैं हम। सेकंड प्लस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2 माइनस x dx दिस ट्रांसफर टू न्यूमरेटर 4 माइनस 3x रेज़ टू माइनस हाफ dx sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x but we know that in integral coefficient of x is the divide x का coefficient -1 divide by -1 ये x raised to n का इंटीग्रल x raised to n plus 1 minus half plus 1 by upon 1/2 but x का coefficient ये डिवाइड होगा डिवाइड बाय ये क्या आएगा -3 ये प्लस अपॉन माइनस tan ऑफ 2 माइनस x इसे आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस b होता है log ऑफ x प्लस b अपॉन a 1 अपॉन x log x कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड सेम वे x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मतलब हाफ बट x का कोएफिशिएंट डिवाइड एनी फंक्शन x का कोएफिशिएंट इंटीग्रल में डिवाइड होता है। ये डिवाइड बाय -3/2 है मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा -2/2 ये रेज़ टू हाफ मतलब रूट ऑफ 4 माइनस 3x माइनस tan ऑफ 2 माइनस x प्लस c। कौन सा ऑप्शन में देखो डी ऑप्शन है डी। इसे हमें फाइंड करना है। सिंपल था सब। तो 55 नंबर का आंसर आ गया ऑप्शन डी। 56 नंबर इंटीग्रल ऑफ 1 dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ sin क्यूब x into cos x। ऑप्शन अवेलेबल है 2 अंडर रूट ऑफ tan x, नेक्स्ट वन 2 अंडर रूट ऑफ cot x, ऑप्शन सी -2 अपॉन रूट ऑफ tan x, ऑप्शन डी 2 अपॉन रूट ऑफ cot x। आपको सोचना है क्या करना होगा। ये 2 अंडर रूट ऑफ tan x मतलब ऐसे होगा f डैश ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ f ऑफ x। इसका इंटीग्रल क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x? 2 अंडर रूट ऑफ f ऑफ x ये होता है। ये रूट नहीं रहा तो log ऑफ f ऑफ x, रूट रहा तो 2 टाइम्स रूट ऑफ f ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव यहां पर चाहिए। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर। cot का डेरिवेटिव होता है -cosec स्क्वायर। sec स्क्वायर माइनस साइन तो नहीं है। sec स्क्वायर कब आएगा न्यूमरेटर में? 1 by cos स्क्वायर मतलब ऑपरेशन इज व्हाट? डिवाइड बाय cos स्क्वायर। अरे ये लॉजिकली हमें समझ में आना चाहिए, सिर्फ बैठना नहीं है। डिवाइड बाय cos स्क्वायर x r इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर। क्लियर हुआ है? डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ sin क्यूब x इनटू cos x डिवाइड बाय क्या है? cos स्क्वायर। बट रूट के अंदर गए तो क्या होगा? cos रेज़ टू 4x ऐसे होगा कि नहीं? ये cos स्क्वायर डिवाइड मतलब इनसाइड द रूट cos रेज़ टू 4x 1 cos कैंसिल होगा। sin क्यूब अपॉन व्हाट? cos क्यूब। sin क्यूब अपॉन cos क्यूब tan क्यूब। sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट? tan क्यूब x। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? मतलब क्या पुट करना है?
tan x इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx का वैल्यू मिलेगा dt, ऐसा आएगा। देन बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा फंक्शन 1 dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट t क्यूब, राइट है। अभी ये अपॉन रूट ऑफ t क्यूब ये पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस इंटीग्रल ऑफ 1 dt अपॉन t रेज़ टू 3/2। ये रेज़ टू 1/2 होगा। हेलो मिस्टर, ये रेज़ टू 1/2 होगा कि नहीं? क्यूब रेज़ टू 1/2 t क्यूब रेज़ टू 1/2 क्या आएगा सिंपलीफिकेशन 3/2। क्लियर है? अभी ट्रांसफर करो न्यूमरेटर को t रेज़ टू -3/2 dt, x रेज़ टू n का इंटीग्रल x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c -3/2 प्लस 1 क्या होता है -1/2 अपॉन -1/2। ये अपॉन -1/2 मल्टीप्लाई किया तो -2, ये ट्रांसफर टू डिनोमिनेटर t रेज़ टू हाफ, राइट है कि नहीं? ये पावर माइनस से डिनोमिनेटर को ट्रांसफर किया तो पावर प्लस -2 अपॉन रूट t रेज़ टू हाफ -2 अपॉन रूट ऑफ t मतलब व्हाट tan x प्लस c -2 अपॉन रूट ऑफ tan x, ऑप्शन है सी। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना था तो ये मिलता आंसर। उसके लिए थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन यूज करना है, कब क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। मैंने डिवाइड क्यों किया cos स्क्वायर से, मुझे f डैश ऑफ x अपॉन में f ऑफ x चाहिए, मतलब अपॉन में tan आना चाहिए। sin x अपॉन cos x किया तो tan, बट ये क्यूब है तो डिवाइड बाय cos क्यूब चाहिए, दैट्स व्हाई डिवाइड बाय cos स्क्वायर, इनसाइड द रूट हो जाता है वो cos रेज़ टू 4। ऐसे स्टेप बाय स्टेप लॉजिक ओपन हो गया तो मजा आता है। 56 नंबर का आंसर है सी। 57 नंबर, सब नंबर 57। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू -x स्क्वायर dx। पहला ऑप्शन है -1 अपॉन 2e रेज़ टू 2x प्लस 1। ऑप्शन बी है 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट e रेज़ टू 2x प्लस 1। ऑप्शन सी है -1 अपॉन 2 in bracket e raised to 2x plus 1 bracket square। ऑप्शन डी है -1 अपॉन 2 in bracket e raised to 2x minus 1। चलो देखो क्या कर सकते हैं। e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू -x का स्क्वायर है, बट अवेलेबल ऑप्शन में e रेज़ टू 2x है। e रेज़ टू 2x मतलब e रेज़ टू x का स्क्वायर, और सेकंड क्लू पावर माइनस रहा तो क्या करना है, हमने प्रीवियस सम में ही देखा है। e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू -x मतलब 1 अपॉन e रेज़ टू x ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी ये यहाँ ट्रांसफर होगा कि नहीं, 1 dx डिवाइडेड बाय e रेज़ टू x इनटू e रेज़ टू x, e रेज़ टू x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू x, बट ये होल ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर, ऐसे होगा। अब ये स्क्वायर मतलब ऐसे हो जाएगा 1 dx डिवाइडेड बाय रूट लिख रहा हूं मैं e रेज़ टू x का स्क्वायर प्लस 1 ये ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e रेज़ टू x का स्क्वायर, सेपरेट पावर, बट दिस मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर e रेज़ टू x का स्क्वायर मतलब e रेज़ टू x इनटू e रेज़ टू x, ऐसे होगा, डिवाइडेड बाय e रेज़ टू x का स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। करेक्ट है? कम ऑन टेल मी द नेक्स्ट वन। e raised to x is the derivative of e raised to x, मतलब after that use the substitution method। What is the substitution?
put e raised to x equal to d एंड डिफरेंस है e raised to x dx का वैल्यू आएगा dt i इक्वल टू ये e raised to x की जगह पे क्या डालोगे t रिमेनिंग e raised to x dx का वैल्यू है dt डिवाइडेड बाय ये e raised to x का वैल्यू t स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे हो रहा है ये ब्रैकेट स्क्वायर ही आ रहा है तो मुझे और क्या करना होगा क्वाड्रेटिक आना चाहिए था e raised to 2x हम e raised to 2x को करते तो ज्यादा इजी होता मतलब ये हम e raised to x into e raised to x e raised to x का स्क्वायर e raised to 2x dx राइट है कहां ये देखो e raised to x into e raised to x बेस इक्वल है मल्टीप्लिकेशन है सम ऑफ द पावर x plus x क्या होता है 2x ऐसे क्यों किया मैंने ऐसे क्यों कर रहा हूं मैंने e raised to x को t पुट करके ट्राई किया तो a plus b होल स्क्वायर हो रहा है इसका स्क्वायर किया तो t raised to 4 आएगा बट मेरे पास raised to 4 का फार्मूला नहीं है मेरे पास क्वाड्रेटिक है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस bx प्लस c मुझे स्क्वायर चाहिए था बट ये ब्रैकेट स्क्वायर है तो एक्सपांड किया तो 4 आएगा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मैं e raised to x का स्क्वायर को क्या लिखूंगा e raised to 2x plus 1 ब्रैकेट का स्क्वायर एंड पुट करते हैं e raised to 2x equal to t e raised to 2x को t क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहां पर है e raised to 2x का डेरिवेटिव 2 e raised to x e raised to 2x dx equal to dt 2 को ट्रांसफर किया e raised to 2x dx equal to 1 by 2 dt e raised to mx का डेरिवेटिव m into e raised to mx ऐसे होता है e raised to 2x dx अवेलेबल है I equal to 1 by 2 dt न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर e raised to 2x plus 1 आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लस 1 भी लेते तो भी आउटकम स्टेप में क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होने वाला 0 मतलब डायरेक्टली होल ब्रैकेट का वैल्यू t का स्क्वायर 1 by 2 कॉमन है इंटीग्रल ऑफ 1 upon t square dt एंड 1 by t square का इंटीग्रल है minus 1 by equal to minus 1 upon 2 t की मतलब क्या है e raised to 2x plus 1 plus c देखो कहां पे ऑप्शन है क्या ये minus 1 upon 2 e raised to 2x plus 1 मैंने क्यू देखकर डिसाइड करना चाहिए था कि e raised to x को t नहीं पुट करना है डायरेक्टली ये ब्रैकेट को t पुट करना है ना और ये ब्रैकेट फॉर्म हुआ था मतलब e raised to 2x plus 1 equal to t पुट किया ये सही है इससे ही हमें आंसर मिलेगा और कौन सा ऑप्शन आ रहा है ए आंसर आ रहा है ऑप्शन ए इसे सॉल्व करना था सम नंबर 57 लुक द नेक्स्ट वन सम नंबर 58 1 dx upon sin x plus sin of 2x sin x सॉरी into sin of 2x है into है ऑप्शन अवेलेबल है 1 by 2 log of mod of sec x plus tan x minus 2 cosec x plus c ऑप्शन बी 1 by 2 log of mod of sec x plus tan x plus 2 cosec x plus c ऑप्शन सी है 1 by 2 log of mod of sec x plus tan x minus cosec x bracket close plus c and option D 2 log of mod of sec x plus tan x minus cosec x plus c ये ऑप्शन है ऑप्शन में लॉग में है
जैसे इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है log x, ऐसे होता है। या और सेकंड पॉसिबिलिटी है इंटीग्रल ऑफ sec x, sec x का इंटीग्रल log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x। मतलब ये कोई भी हो सकता है, मतलब गेस नहीं कर सकते कि ये दो नहीं है, क्योंकि ये सब जगह पे प्लस ही है। sec x का इंटीग्रल log ऑफ sec x प्लस tan x ऐसे आता है। मतलब मुझे 1 अपॉन cos आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? बट cos तो अवेलेबल है क्या? नहीं है। cos कब आएगा? राइट, इसका फॉर्मूला पुट करना होगा। sin 2x का क्या फॉर्मूला है जिसमें cos है? sin 2x का फॉर्मूला, इसलिए पहले सब बेसिक फॉर्मूले लर्न चाहिए। sin x into sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, ये आ गया। फिर से कंसंट्रेट करो, मुझे पहला टर्म प्लस में टर्म आना चाहिए, प्लस या माइनस दो टर्म मिलना चाहिए, बट ये 1 अपॉन में है और ये 1 अपॉन cos, तो ये sin into sin sin स्क्वायर रिमूव होना चाहिए, राइट है कि नहीं? 2 तो हम कॉमन निकालेंगे, ये 2 मैंने कॉमन निकाला, कोई डाउट नहीं है। बचा क्या है यहाँ पर? sin स्क्वायर x into cos x। अभी फिर से आपको सोचना है 1 अपॉन cos आया तो sec, और sec का इंटीग्रल है log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x। sin स्क्वायर हटाना है, और कैसे हटेगा? पुट द वैल्यू ऑफ दिस 1 का वैल्यू हमें पुट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये 1 की जगह पे लिख सकते हैं ना हम। अभी सेपरेट एडिशन में भी टर्म आ जाएगा 1/2 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x into cos x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x into cos x dx। कोई डाउट है इसमें? अभी देखो ये sin स्क्वायर क्या होगा? कैंसल। 1 अपॉन cos मतलब sec x dx प्लस इंटीग्रल, अभी यहाँ पे 1 cos क्या हुआ? कैंसल। 1 cos अपॉन sin cot x, 1 upon sin cosec x dx। ना मजा आता है ना? इंटीग्रेशन ऑफ sec x is what? log of mod of sec x plus tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x माइनस cosec x, देखो कहां पर है? 1/2 log of mod of sec x plus tan x माइनस cosec x। इसका इंटीग्रल माइनस में आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन है? सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। You guys, sum number 58, 59. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 into x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू उसको दिया गया है कि इक्वल टू गिवन है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस l tan इनवर्स ऑफ x by 2 plus c। देन हमें k का वैल्यू या l का वैल्यू, ऑप्शन ए k का वैल्यू है 2/3, ऑप्शन बी k का वैल्यू है -2/3, ऑप्शन सी l का वैल्यू है 2/3, ऑप्शन डी l का वैल्यू है 1/6। ये ऑप्शंस गिवन है। हमें देखना है, सोचना है k या l दोनों में से एक तो वैल्यू मिलेगा। आपके जो पीडीएफ फाइल है उसमें एक मिस्टेक हुआ है, x4 हुआ है, यहाँ पर x4 नहीं चाहिए, x² ही चाहिए। ये स्क्वायर में है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है। डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता तो सब्ट्रैक्शन मेथड करते हम, बट अभी हमें
एडजस्टमेंट मेथड से भी आएगा और पार्शियल फ्रैक्शन से भी आएगा। पार्शियल के लिए टेम्पररी x2 के लिए t पुट करना होगा, टेम्पररी नॉट परमानेंटली कंसीडर करना होगा, तो ये आएगा 1/t+1 * t+4, मतलब ये विदाउट इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल रहा तो डिफरेंशिएट करना होता है। इसका एडजस्टमेंट a/t+1 + b/t+4 ऐसे करना होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ab, आफ्टर दैट वी सब टू द वैल्यू ऑफ t। ये आपका प्रोसीजर है, आपको पता है। अनदर मेथड है शॉर्टकट में दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस। दिस इज रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 1/3 x² + 1 माइनस 1/x² + 4 dx। बैलेंस से देखो, यहां मल्टीप्लाई होगा x² + 4 माइनस x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट का प्रोडक्ट, राइट है ना, ये कैंसिल 4 - 1 3 कॉमन 3 कैंसिल, बैलेंस, यही बैलेंस। अभी इसका डायरेक्टली इंटीग्रल है, ये 1/3 इन ब्रैकेट 1/x² + 1 का इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ x। अरे tan इनवर्स का डेरिवेटिव है ना, 4 इज रिटन एज 2²। कौन सा फार्मूला, 1/x² + a², 1/x² + a² का फार्मूला 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई, तो k का वैल्यू 1/3, ये क्या होगा -1/6, माइनस आएगा नहीं, तो हमें क्या फाइंड करना है, k वैल्यू 1/3 आएगा नहीं, l का वैल्यू क्या आएगा -1/6। ये माइनस चाहिए था क्योंकि ये बीच में साइन माइनस आई, तो ये बैलेंस होगा, माइनस ही है, मैंने गलत लिखा। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी, l का वैल्यू है -1/6। इससे आपको ये सॉल्व करना है। 59 नंबर का आंसर है डी। 60 नंबर, इंटीग्रल ऑफ x into cos² x dx डिवाइडेड बाय √1 - x²। x into cos इनवर्स ऑफ x dx अपॉन √1 - x²। आप खुद ट्राई करोगे, देखकर ही आप लोगों को समझ में आया होगा कौन से मेथड से सॉल्व करना है। कम ऑन यू ट्राई नेक्स्ट वन। क्या डिसाइड हो गया, क्या करोगे, क्या क्यों है, cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अवेलेबल है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x -1/√1 - x², वो अवेलेबल है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट cos इनवर्स ऑफ x = t। चलो कैरी ऑन करो, सॉल्व करो। ऑप्शन डी है -x/√1 - x² प्लस sin इनवर्स ऑफ x + c, cos इनवर्स ऑफ x = t, ये पुट करना है। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव अवेलेबल है, दैट्स व्हाई हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट मल्टीपल x है तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। cos इनवर्स ऑफ x = t बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x = cos t बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ये यहां ट्रांसफर होगा, x का वैल्यू आएगा cos t, इसे डिफरेंशिएट किया तो -1/√1 - x² = dt by dx। Then after rearrangement dx/√1 - x² = -dt, dx/√ का वैल्यू है -dt। चलो राइट इन t वेरिएबल आप करोगे अभी,
आ जाएगा आप लोगों को, ट्राई करो। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को टी पुट करना है, टी मल्टीप्लाई बाय कॉस टी डी टी माइनस कॉमन टी कॉस टी बाय यूजिंग बाय पार्ट्स रूल। प्रोडक्ट में आ रहा है फंक्शंस, बाय पार्ट्स रूल से सॉल्व करना है। टी इंटू कॉस टी, पहले लाइटे से देखो, अलजेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। सिंप्लीफाई करना है फंक्शन, बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करो एंड सॉल्व करो। बाय यूजिंग बाय पार्ट्स रूल u इंटू v से सॉल्व करना है एंड डिसाइड विच इज द करेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही शार्प, उतना ही आप स्मार्ट बनोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये किसी ने जो कहा है वह सबके लिए है। ऐसा नहीं कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया ओरली आएगा, नहीं, प्रैक्टिस करो, हर सम समझ में आना चाहिए। डिसाइड विच इज द करेक्ट। आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए। घर पे प्रैक्टिस करो अच्छी तरह।